इसी के साथ हम अपने अगले पैनल डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं. एंड दे से दैट यू आर व्हाट यू ईट, सो डोंट बी फास्ट, चीप और फेक. यानी आप कितने स्वस्थ हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये आपकी डाइट पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है. खास तौर पर यदि आप अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं तो एक हार्ट हेल्दी डाइट होना बहुत ज़रूरी है. इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अपना पैनल डिस्कशन इसी टॉपिक पर हम रखेंगे, इनोवेशंस इन हार्ट हेल्दी डाइट्स, इमर्जिंग ट्रेंड्स. और इस टॉपिक के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर अंकुर गुप्ता को, कार्डियोलॉजिस्ट, पारस हॉस्पिटल, डॉक्टर अंकुर आहूजा, कार्डियोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली. इस सेशन को मॉडरेट करेंगी चाहत जैन. डॉक्टर्स, कैन आई प्लीज इनवाइट यू बोथ हियर ऑन द स्टेज. टॉपिक एक बार फिर से आप सबको बता दूं, इनोवेशंस इन हार्ट हेल्दी डाइट्स, व्हाट आर द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इट. लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड विद चाहत. Guys, so we have two Dr. Ankurs in our panel today. I think it would be very easy for me to just introduce Dr. Ankur and Dr. Ankur. So God bless me. Thank you. बहुत कॉमन चीज़ है हार्ट हेल्थ. लाइक हार्ट से बढ़कर और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता. एंड दिस इज़ वाई आई थिंक दिस कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन फॉर ऑल ऑफ यू. सो आई नीड योर अटेंशन गाइज. डॉक्टर अंकुर, आई विल स्टार्ट विद यू. गुड हार्ट हेल्थ, बैड हार्ट हेल्थ, बहुत देयर इज़ अ फाइन लाइन. आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कॉमन है. पीपल एज यंग एज 18, 20, 22 आर गेटिंग हार्ट अटैक्स एंड लाइक फेटल हार्ट अटैक्स. एक समय हुआ करता था 70, 75, 80 के बाद हार्ट अटैक होता था. पीपल यूज्ड टू से मेरे दादाजी को हार्ट अटैक हुआ. नाउ पीपल से माय कॉलीग, माय फ्रेंड, younger sibling, how it just happened. Like can we say that it could be a repercussion of the pandemic or anything? Yeah, hi. It's a very common question, what you asked. So once we see a patient of a heart attack, we are already too late. Because whatever changes, जो भी हमारी changes body में heart में हुए हैं, so you said good heart and bad heart. So once we talk about bad heart, we are already late because जो changes हुए, they have happened over a period of years. So हमारी arteries में जो cholesterol हुआ है या heart failure हुआ है या heart attack हुआ है, that has happened because हमने बहुत time से अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा. So once we talk about good heart, we are talking about that we have been exercising regularly. We have not smoked. We have not had a very stressful life. We had a good dietary pattern. So जब आप ये चीज़ें करते हो, you are not overweight, you have been exercising, you have been managing your lifestyle very well. It's only that कि आप तब बोलोगे कि मेरा heart healthy है. Right. So if not been taking care, which is very common in youngsters nowadays. So हम कहते हैं आज की तारीख में we are also worried because we see a lot of our cardiac patients which are very young, less than 30 and 40. Right. So what we realize is we don't have very obvious reason कि vaccination की वजह से हुआ, because vaccination has happened to everyone. Easy target. Elderlies did not get a very frequency or increased frequency of heart attack. Why so for youngsters? Right. So maybe because अगर आप देखोगे हमारी जितनी भी हमारे जो young patients आते हैं, almost all of them are very stressed out, have erratic working lifestyle, and they have been eating very badly. A lot of them would be smokers also. So it's what we anticipated is actually happening. Okay, Dr. Ankur. Yeah, when we started today's discussion, almost all our panelists, they have stressed upon a healthy living lifestyle right from their childhood. So these days when you ask, okay, a child is playing games, but the child is playing games on the mobile phone. Even if he's playing a football game, the game is being played on the mobile phone. Less physical activity. you Less mean to say. physical activity. The more physical activity you do, you'll have good mental state also, and good healthy heart also. So the more you exercise and less stressed you are, the better will be your heart health. So हम ये कह सकते हैं कि because of the lifestyle and maybe bad eating habits, ये एक change आया है. Definitely. अच्छा, एक क्योंकि मैंने इस सवाल मैंने यहीं से शुरुआत करी कि बहुत ज़्यादा हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, कहीं पे भी किसी को भी एकदम से हार्ट अटैक आ रहा है. वी हैव सीन वीडियोस कि कोई जिम में है तो ट्रेडमिल पे रनिंग के दौरान आ गया, स्विमिंग के दौरान आ गया, किसी को ऑफिस में काम करते दौरान आ गया. अगर किसी को ऐसे ऑल ऑफ अ सडन हार्ट अटैक आ जाता है विदाउट एनी प्रायर साइन, SOS कंडीशन है, आप बिल्कुल अकेले हैं, यू माइट नॉट हैव एनी हेल्प एट होम और एनी वेयर यू आर, एंड
कैन यू हैव 10 मिनट्स, कुछ ऐसा हो सकता है? कैन यू जस्ट टेक समथिंग कि आपको 5-10 मिनट का समय मिल जाए, यू कैन क्राई फॉर हेल्प और प्रॉबेबली यू कैन जस्ट रन टू अ हॉस्पिटल? इज देयर अ SOS medication or something? सो ऑफ कोर्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अगर हार्ट अटैक है या नहीं, हाउ डू यू डायग्नोज दैट? सो इफ अ पर्सन गेट्स Right. चेस्ट पेन, इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज अ हार्ट अटैक, सो कुछ और भी हो सकता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है इफ यू कैन गेट अ ECG डन और अ कंसल्टेशन. सो दैट इज व्हाट आई एडवाइज टू माय पेशेंट्स इज, आप सबसे पहले नियर बाय डॉक्टर को दिखाओ वेयर एटलीस्ट अ ECG फैसिलिटीज अवेलेबल. सपोज यू आर इन अ रिमोट एरिया एंड यू एंटिसिपेट कि मेरे को डायबिटीज हाइपरटेंशन है, मुझे हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा है या मेरी फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा है, इन दैट केस यू कैन टेक एस्प्रिन commonly, at least we have a Disprin tablet of 300 something milligram, so you can Guys, take I that. think we need to please give him some attention because this is very important. अगर किसी को SOS कहीं भी हार्ट अटैक आ जाए, irrespective of your gender, irrespective of your age, आपको क्या करना चाहिए? You just have 5 minutes with you. Doctor, would you please repeat? सबसे पहले आप अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाएंगे, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये डायग्नोज करना है कि वो हार्ट अटैक है या समथिंग एल्स. हार्ट अटैक है, then doctor would give you aspirin immediately, and we have a medicine which is called as statin immediately, and then and there, if possible, you go to a center where a treatment of medical treatment for heart attack is available. So utmost priority is not to waste time and go to a doctor who can treat you or diagnose you properly. Doctor? Yeah, many a times we see that a person at home or somewhere else, the person will mistake his or her symptoms as the gastric symptoms. कि उसको लग रहा है कि गैस है. बहुत टाइम ऐसा होता है कि गैस्ट्रिक सिम्टम्स को हार्ट अटैक के सिम्टम्स के साथ आप मिस कर जाते हो. और ओवर द काउंटर गया केमिस्ट से, उसने गैस की गोली ली, ठीक फील कर लिया. बट अगर ऐसा लग रहा है कि आपको सिम्टम्स हैं, या जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपकी फैमिली रिस्क है, डायबिटिक है, आपको ज़्यादा रिस्क है हार्ट अटैक होने का, तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए. जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर के पास जाके एटलीस्ट एक ECG तो करवा लो. ECG से आपको ये तो पता चल जाएगा कि आपको कोई हार्ट अटैक आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जितना जल्दी आप हो सके उस हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं. बहुत बार क्या होता है, जैसे हमने देखा हमारे एक म्यूजिशियन थे जिनको हार्ट अटैक आ गया था Right. while he was performing live. उनको जब इतने बड़े इवेंट्स होते हैं वहाँ पे मेडिकल टीम्स भी होती हैं, एम्बुलेंस तक लेके जाने के लिए उनको चलाकर लेके गए, रादर देन कि उनको स्ट्रेचर पे लेके जाया जाए या व्हील चेयर पे लेके जाए. ऑलरेडी उनकी जो बॉडी थी, हार्ट था, वो इतना स्ट्रेस था कि उनको चल के लेके गए, वो और ज़्यादा स्ट्रेस में आया. और सडनली अगर कोई आपके आसपास कोलैप्स कर जाता है, तो एक बेसिक लाइफ सपोर्ट जो होता है कि BLS होता है, या आपको पेशेंट को कैसे रिससिटेट करना है, उसका आई थिंक स्कूल्स में भी हमें टीचिंग होनी चाहिए. आप देखो कितने स्कूल्स हैं पूरे इंडिया में, लाखों करोड़ों बच्चे हैं. अगर एक एक बच्चे को भी थोड़ा थोड़ा भी हम बेसिक लाइफ सपोर्ट टीच करते, तो आने वाले कुछ सालों में हमारे पास हर एक बाय स्टैंडर होगा जो आसपास, जिसको बेसिक रिससिटेशन आती होगी कि जब तक Right. एम्बुलेंस आ जाए तो वो उस कीमती समय में उस पर्सन की जान बचा सके. हमने ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे पॉजिटिव स्टोरीज भी देखी हैं कि मेट्रो स्टेशन पे किसी ने हेल्प करके हार्ट अटैक के पेशेंट को हेल्प करी. बहुत सारी इस तरह की पॉजिटिव स्टोरीज भी देखी हैं. बट डॉक्टर्स, यू आर एक्सट्रीमली राइट कि इस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए, बिकॉज इट कुड नॉट बी यू बट द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू. डॉक्टर, बार बार ये शब्द आ रहा है कॉन्वर्सेशन में, ECG. अब क्योंकि हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि छोटी उम्र में इस तरह के बड़े सेटबैक्स हो रहे हैं फिजिकल, कोई ऐसे टेस्ट जो मे बी 25 साल की उम्र के बाद आपको कराते रहना चाहिए, साल में 1 बार, साल में 2 बार, या कोई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज जो आपको पता रहे कि हाँ हमारा हार्ट सही है, हेल्दी है? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको कोई ये नहीं बता सकता कि आपको हार्ट अटैक कब होगा. फर्स्ट इज इम्पॉर्टेंट इज नो कि मेरे पास कोई टेस्ट नहीं, मैं बता सकूँ कि मेरे को 2 घंटे बाद. जनरल हार्ट हेल्थ को अगर यस, सो हम जब हार्ट हेल्थ की बात करते हैं, हम पैरामीटर्स वी रिकमेंड कि एवरी एडल्ट शुड हैव देयर फ्यू टेस्ट डन टू असेस देयर मेटाबॉलिक. सो मेटाबॉलिक प्रोफाइल का मतलब क्या है कि जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मेरा BP चेक करेगा. सो मेरा BP कैसा रहता है, मेरी शुगर्स कैसी रहती हैं, मेरा वेट कितना है, मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कितने हैं, एंड जनरली आपके रूटीन किडनी या लिवर के टेस्ट भी कोई डॉक्टर कर सकता है. सो दैट टाइम अगर मेरे को सपोज आई एम अ डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव, मेरा कंट्रोल कितना अच्छा है, सो कंट्रोल ऑफ दीज पैरामीटर्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इंसिडेंस या कार्डियक प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करता है.
डॉक्टर अंकुर, क्या ओबेसिटी या फिर कोलेस्ट्रॉल इस तरह की जो चीज़ें होती हैं दैट मेक्स यू मोर प्रोन टू हार्ट अटैक्स और हार्ट फेलियर्स? या डेफिनेटली ओबेसिटी एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए। ओबेसिटी वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर डायबिटीज़ होने का रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। और जब कोई ओबीज़ है दैट मीन्स वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, उसका सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, दे आर मोर प्रोन टू हैविंग टू हैव हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो। So directly or indirectly, they are more prone to have high cholesterol levels and we can say bad cholesterols, and which in turn increase their risk for heart attacks in future or heart disease. डॉक्टर अंकुर, आज के टाइम में हम देख रहे हैं दैट एवरीबडी इज़ वेरी गोल ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, और इस वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और हाइपरटेंशन होना लाजमी है। ऐसे में भी क्या ये डायरेक्टली हमारे हार्ट हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं? कितना और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? So stress is a upcoming risk factor. So we have some, हम जब बात करते हैं कुछ conventional risk factors की बात करते हैं, but again and again with the newer recommendations coming up, stress is taking an increasing importance in so many other illnesses. We are, हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं आज, बट अगर हम बात करेंगे कि आपका जनरल एक्सरसाइज लेवल क्या है, आपका एसिडिटी, एज सिंपल एज एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये भी आपका स्ट्रेस रिलेटेड हो सकता है। सो स्ट्रेस जब होता है, स्ट्रेस इज नोन टू इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर, इंक्रीज योर सिंपैथेटिक एक्टिविटी विच इज़ अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, which increase your blood pressure, which increases your clotting tendency, which increases your heart attack tendency. So youngsters में जब हम बात करते हैं, we presume stress is a major contributor to heart attacks in young individuals. So आप जब stress management की बात करते हो, of course एक a routine lifestyle would help you in managing the stress. Routine का मतलब there is a pattern to your lifestyle where you can rest also. So you can't be working 24 hours. अगर मेरा बॉस रात को 2 बजे फ़ोन करके मीटिंग लेकर आया तो some place it is affecting my health. So आपको वो चीज़ें कंट्रोल करनी है. Of course exercise is an important part of reducing stress. Management of your food habits is an important part in managing stress. So yoga itself helps in managing stress. Right. I hope my boss is sitting right here and listening to all of this, that they need to give me less stress. But surprisingly, all these lines are coming from a doctor who himself, like the entire medical fraternity, they are always overworked, and they're always so stressed out in themselves, like there's so much responsibilities. डॉक्टर अंकुर, कमिंग टू यू, जैसे कि डॉक्टर ने बताया कुछ इस तरह की इजी टिप्स जो हमारी एंग्जाइटी को, हमारे हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर पाएँ. अगेन बिकॉज इट इज़ इररिलेवेंट ऑफ द एज. अब आजकल बच्चों को भी kids as young as 6 or 7 they have hypertension and stress and anxiety. हाइपरटेंशन में एक सोडियम का या सॉल्ट का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. जो WHO गाइडलाइंस हैं, हमें 1 टीस्पून यानी कि 1 चम्मच 5 ग्राम से कम का सॉल्ट पूरे दिन में लेना है. अगर आप कोई भी मील बाहर करते हो, चाहे आपने पनीर या दाल ऑर्डर की है बाहर जाके, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, आप होटल में हो, कुछ भी हो, जो भी खाना होगा वो हाई सोडियम या हाई सॉल्ट होगा उसमें. अगर आपने 3 मील भी ऐसे बाहर की ले लिया तो आपका वैसे ही सॉल्ट इंटेक बहुत इंक्रीज कर जाएगा. चाहे आप वर्क के लिए ट्रैवल करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो आपको खाना अपना उसी हिसाब से देखना है, पोर्शन साइज आपको कंट्रोल करना है, अपना रेगुलर एक्सरसाइज करनी है. स्लीप बहुत बड़ा फैक्टर है. एटलीस्ट हैव 6 to 8 आवर्स ऑफ गुड साउंड स्लीप. एक्सरसाइज आप रेगुलर बेसिस पे करिए और अपने खाने के पोर्शंस को, इसीलिए एक डैश डाइट हम बोलते हैं, अ डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन विच फोकसेस ऑन मोर ऑन द प्लांट बेस्ड डाइट. ठीक है, जिसके अंदर फैट कम होगा, सोडियम लेवल्स लो होंगे, सॉल्ट लो होगा, जिससे कि हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल किया जा सके और इनडायरेक्टली वो अपने हार्ट हेल्थ को भी बेटर करती है इस तरह की डाइट. ऑफ कोर्स, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी हार्ट एलिमेंट्स हैं, हार्ट इश्यूज हैं, हम इन्हें रिवर्स कर सकते हैं इफ़ वी मेंटेन अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, प्रॉपर स्लीप एंड गुड डाइटरी मेजर्स, राइट? या डेफिनेटली इट ऑल गोज अ लॉन्ग वे. सो आप जो भी एफर्ट आज शुरू करोगे, इट विल टेक इफेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प कि आपका डिजीज स्लो डाउन हो जाए, रुक जाए. Is there any distinction between heart health of men and women? Is there any? So there are certain diseases, कुछ diseases ऐसे हैं जो women में ज़्यादा common है, कुछ men में ज़्यादा common है. So conventional हम जब heart attack की बात करते हैं, traditionally if we are talking about, वो women में कम होते हैं because women में hormonal
Hormones are different than males. Right. So a premenopausal female generally has less chances of heart attack. Because Premenopause. premenopause. What is After that? menopause हॉर्मोन्स वापस मेल्स की तरह हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाते हैं, Okay. तो उसके बाद हार्ट अटैक के चांसेस फीमेल्स में भी उतने ही होते हैं जितने मेल्स में होते हैं. Similar to सो men. दिस इज वन डिजीज. बट देयर अदर डिजीज वीमेन में, सपोज कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, कुछ पीसीओडी है या ऑटोइम्यून या एंडोमेट्रियोसिस है. सो ये डिजीजेस हार्ट की और प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं. फीमेल्स में हार्ट फेलियर प्रिजर्व्ड ईएफ इज एंटिटी जहाँ हार्ट फेलियर होता है लेकिन हार्ट की पंपिंग नॉर्मल होती है. दैट इज अ लिटिल मोर कॉमन इन सर्टेन अदर रूमेटिक हार्ट डिजीज. एक पैटर्न मेल्स में ज़्यादा कॉमन है, एक फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन. इवन दैट मैटर अगर हम हार्ट अटैक की बात करते हैं, विमेन के बिकॉज हार्ट की आर्टरीज छोटी होती हैं, उनका रिजल्ट्स टू ट्रीटमेंट आर लिटिल डिफरेंट देन मेल्स. सो सर्टेन पैटर्न्स आर डिफरेंट, बट ग्रॉस जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, दे आर इक्वली बेनिफिशियल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. डॉक्टर अंकुर, कमिंग टू यू, जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि थोड़ा डिस्टिंक्शन डेफिनेटली है. Is there anything that women in particular should do to maintain their heart healthy? Easy things which they can do probably at work or at home. See, women should focus more on exercise also. घर पे भी आपने देखा होगा मदर्स को ये होता है कि थोड़ा थोड़ा करके उनका खाना ज़्यादा हो ही जाता है. अपना तो खा लिया, बच्चे का बचा फेंकना नहीं है, वो भी उन्होंने खाना है. तो अपना डाइट और पोर्शन साइज को कंट्रोल करना. स्ट्रेस लेवल वीमेन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, Right. एक्सपोनेंशली बढ़ता जा रहा है. और जो रिपरकशंस हैं हार्ट अटैक के या हार्ट फेलियर के, जो सिम्टम्स और जो उनमें साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, वो विमेन में ज़्यादा होते हैं रादर देन मेल्स. और जितना हम विमेन को हेल्दी इनकॉर्पोरेट करेंगे लाइफस्टाइल के लिए कि एक्सरसाइज करो, ज़्यादा चलो, अगर मार्केट जाना है पॉसिबल है तो आप चल के चले जाओ मार्केट में अगर आपको सामान लेने जाना है, रादर देन गोइंग बाय टू व्हीलर और अ कार, जितना कर सकते हैं. तो विमेन अपनी हेल्थ को ज़्यादा, विमेन में सिम्टम्स बहुत सटल आते हैं हार्ट डिजीज़ के. Okay. बहुत बार उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको हार्ट अटैक होने वाला है. एज कम्पेयर टू मेन, विमेन विल हैव मोर सटल साइंस और सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज़. डॉक्टर, यहाँ पर मेरा एक और बहुत कॉमन सा सवाल है. कई बार क्या होता है कि हमें कुछ भी छोटी सी बीमारी होती है, या सर दर्द हो गया, बीपी की प्रॉब्लम है, ऑल ऑफ अ सडन फीवर हो गया, कोल्ड कफ हो गया, सब लोग अपने आप को ही डॉक्टर समझ के मेडिसिन ले लेते हैं. सर दर्द है, बहुत दर्द है, कॉम्बीफ्लैम खा ली. बुखार हो गया, क्रोसिन खा ली, नॉर्फ्लॉक्स खा ली. एंड यू नो दे आर एन नंबर ऑफ मेडिकेशंस. ऐसी बहुत सारी कॉमन मेडिसिन होंगी, आई वोंट नेम एनी, या शायद ऐसे सॉल्ट होंगे जो हम इजीली अवेलेबल इन द मार्केट है, जो हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कंज्यूम कर रहे हैं, जो शायद हमारे हार्ट का साइलेंट किलर है. आर देयर एनी, और इफ यू कुड नेम टू एनलाइटन आवर So ऑडियंस. just two most common things which we normally see. One is जो regular pain killers हैं. So you have to realize XYZ जो आप pain killer ले रहे हो, they are known to increase the risk of heart attack. Beyond वो किडनी डैमेज या अदर इश्यूज जो है, बोन लॉस है, उसके अलावा हार्ट अटैक का रिस्क नॉर्मल पेन किलर्स बढ़ाते हैं. सो आई टेल माई पेशेंट्स कि अगर हार्ट अटैक के आप पेशेंट है, सपोज पेशेंट हैड हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी या सर्जरी हुई है, आई टेल देम आप पेन किलर्स मिनिमम यूज़ करोगे. राइट. इफ़ अगर आपको ज़रूरत है, सेफेस्ट पेन किलर इज़ पैरासीटामॉल. ठीक. सेकेंड इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम इज़ स्टेरॉइड्स. सो इन आर रूरल एरियाज पर्टिकुलरली, अर्बन में कम है शायद बिकॉज पीपल हैव मोर एक्सेस टू मेडिकल हेल्थ केयर, Right. बट रूरल एरिया में पीपल फॉर एनी बॉडी में दर्द हो रहा है, एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इंजेक्शन है या स्टेरॉइड दे दिया, एंड लोग सालों महीनों तक स्टेरॉइड्स खाते हैं, एंड दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. सो दीज टू पर्टिकुलर आर वेरी कॉमन. दे आर अदर ड्रग्स ऑल्सो. अगेन डॉक्टर अंकुर, जैसे कि डॉक्टर ने स्टेरॉइड्स की बात करी, स्टेरॉइड्स तो लोग अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए भी कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत कॉमन है, एवरी जिम सब जगह हो रहा है. आई एम नॉट सेइंग समबडी इज प्रिस्क्राइबिंग इट, लोग सेल्फ कंज्यूम भी कर रहे हैं. आई एम प्रीटी श्योर दे मस्ट बी ऑल्सो वेरी डेंजरस टू योर हार्ट. डेफिनेटली, बिकॉज जो ये बॉडी बिल्डिंग की आपने बात की, अगर कोई इसके लिए स्टेरॉइड्स भी ले रहा है, उनका पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम ही चेंज हो जाता है, और जितनी कैपेसिटी है उनकी बॉडी की, उनकी हार्ट की, उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को लेने के लिए, उससे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वो कर रहे हैं. अगर किसी की कैपेसिटी है कि वो सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज कर सकता है, तो वो 2 घंटे 4 घंटे एक्सरसाइज कर रहा होगा Right. अपनी उस बॉडी को अचीव करने के लिए. और फिर हम देखते हैं कि सडनली वो तो इतना फिट एक्टर था, वो तो इतना फिट था, उसकी बॉडी Right. इतनी अच्छी थी,
बट वो सडनली उसको हार्ट अटैक आया और उसकी डेथ होगी। अच्छी फिजिक होना, अच्छी बॉडी होना कोई भी प्रोपोर्शन में make you नहीं healthy. बताता है कि आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है, इंटरनल हेल्थ क्या है, इंटरनल क्या चल रहा है। तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि ये भी होता है कि आप धड़ल्ले से सप्लीमेंट्स ले जा रहे हैं और पता ही नहीं है किसी को कि क्या हो रहा है बॉडी के अंदर क्या असर हो रहा है। डॉक्टर्स, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, इंडिया अब एक मेडिकल टूरिज्म हब बन रहा है। ईस्टर्न कंट्रीज़ में तो डेफिनेटली पहले से था, नेबरिंग कंट्रीज़ में था, बट नाउ इन द पास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव ऑल्सो सीन दैट पेशेंट्स आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम कैनेडा टू गेट देयर हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरीज। क्या कर रहे हैं, हमारा प्लान क्या है? सो हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ क्या है, हमारे पास बहुत अच्छी ट्रेन मैन पावर है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ एन इशू, बट अब काफ़ी हद तक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ हैव अपग्रेडेड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर टू अ वेरी गुड लेवल्स। सो हमारे पास एक्सेस पेशेंट के लिए बहुत आसान है। सो इफ़ अ पेशेंट हैज़ अ हार्ट अटैक, और सपोज हार्ट अटैक नहीं, मेजर इशू माइनर हाइपरटेंशन है, अगर आज पेशेंट चाहे तो उसको सेम डे या नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट मिलना किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऑन द अदर हैंड, या तो हम अफ्रीकन कंट्रीज़ या मिडिल ईस्ट की बात करें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रेन मैन पावर कुछ ना कुछ लैकिंग है। कनाडा की बात करें तो वहाँ पे आज अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको 6 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा। So people would rather come get a treatment here, have a vacation and go back. So it is easier because it is very cheaper as compared to the developed countries. So जो एंजियोप्लास्टी अगर यूएस या कनाडा में हो रही है उसकी में भी हम शायद 1/10 कॉस्ट में कर रहे हैं। सो डॉक्टर की अगर फीस की बात करें वहाँ से भी 1/10 होगी। सो अगर लोगों के लिए एक्सेस ईजी है, क्वालिटी अवेलेबल है, एंड दैट इज मे बी वी आर गेनिंग ओवर मेडिकल टूरिज्म। डॉक्टर, योर व्यूज ऑन इट? Yeah, definitely. I'll give you an example. One of my close friend, he shifted to Canada. He got a PR from Canada, and last year he started complaining of chest pain. तो उसका मेरे को फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं मेरे को, तो जाके अपने डॉक्टर को दिखा, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा। वो कहते हैं यहाँ तो 6 महीने की वेटिंग पीरियड है, पहले जीपी देखेगा, जीपी देखेगा, उसको लगेगा वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर करेगा। तो व्हाट ही डिड कि वो यहाँ आ गया फ्लाइट लेके, और यहाँ पे उसने अपना चेकअप करा लिया। तो 6 महीने वेट करना हार्ट डिजीज़ के लिए, उसके बीच में उसको कुछ हो जाए, इट्स वेरी सैड थिंग। इवन दो दे से दैट दे हैव सच एन एडवांस्ड हेल्थ केयर, but waiting time is too high over there. Too high. There's no point when the waiting time is too high. Well, thank you so much, doctors, for such an enlightening session for our audience. And we hope that all of your questions, most frequently asked questions, were answered. Thank you so much, doctor. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks a lot, Chahat. Thank you, Dr. Ankur Gupta and Dr. Ankur Ahuja. I'm going to invite on stage Mr. Samrit Bhattacharya, National Sales Head, Digital ABP Network, to please come and give our token of appreciation to both our guests for this wonderful discussion on innovations in heart-healthy diets, which are the emerging trends. And of course, दिल की सेहत अगर अच्छी है तो पूरे स्वास्थ्य का आप ध्यान रख सकते हैं। किस तरह से रखना है, हमारे दोनों पैनलिस्ट ने इस सेशन के दौरान उस पर खुलकर चर्चा की, एंड आई एम श्योर दैट इट विल टर्न आउट टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दोज हु वर ट्यून्ड इन फॉर दिस सेशन।